ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने उन लोगों के लिए पढ़ा है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनका ज़मीर मर चुका है। इन जैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो यार। माजूर है, यतीम है बच्चे, प्लाट लिया था किस्तों पर राना टाउन में और डीलरों ने इसके साथ फ्रॉड। शर्म आनी चाहिए यार। इन जैसे फ्रॉडियों को, माजूर खातून को तो देख लेते हैं, बर्तन धो धो के लोगों के घरों में एक एक रुपया जोड़ा, 7 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लिया, सारी इंस्टॉलमेंट की किस्तें पूरी हुई, लेकिन खुदा का खौफ नहीं है इन फ्रॉडियों में जो कि राना टाउन में बैठे हुए हैं। एक एक प्लॉट 10-10 लोगों पर वो बेचते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी पुलिस को भी जो साथ मिली हुई है उनके और एक्शन नहीं लेती, और शर्म आनी चाहिए उन प्लाट वालों को भी। उन्होंने अगे कितने सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ? 6000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ये कहाँ पर धक्के खाएं? 7 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है इस माजूर खातून के साथ। प्लॉट लिया था किस्तों पर राना टाउन में और डीलरों ने इसके साथ फ्रॉड। शर्म आनी चाहिए यार। इन जैसे फ्रॉडियों को, और जो डीलर बैठे राना टाउन में और इन जैसे लोगों को भी मतलब फ्रॉड का निशाना बनाते हैं। कम से कम माजूर खातून को तो देख लेते हैं, बर्तन धो धो के लोगों के घरों में एक एक रुपया जोड़ा, 7 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लिया, सारी इंस्टॉलमेंट की किस्तें पूरी हुई। जब ये फाइल लेने के लिए गई तो आगे से कहते हैं आपने जिससे प्लॉट लिया था वो फरार हो। मतलब ये कौन सा कानून है हमारा? डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर, एसपी जो यहाँ पर बैठते हैं हमारे फिरोज वाला, उनसे मुतालबा है कि कम से कम इन जैसे लोगों के साथ तो फ्रॉड ना हो। ये माजूर है, ये दिखाएं ज़रा, और यतीम है ये बच्चे, और एक एक रुपया जोड़कर लोगों के बर्तन धोकर घरों के अंदर काम करके इन्होंने किस्तों पर प्लाट लिया कि चलो बच्चों के लिए 4 दीवारी बनाऊंगी, छत होगी, लेकिन खुदा का खौफ नहीं है इन फ्रॉडियों में जो कि राना टाउन में बैठे हुए हैं। एक एक प्लॉट 10-10 लोगों पर वो बेचते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी पुलिस को भी जो साथ मिली हुई है उनके और एक्शन नहीं लेती, और शर्म आनी चाहिए उन प्लाट वालों को भी। डीलर दफ्तर बनाकर जो है उन लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाते हैं। माँ जी किन्ने का प्लाट लेता सी? 7.5 लाख का। 7.5 लाख का। 2.5 लाख ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ? 6000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ? ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਫਤਾਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਯੂਨਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਸ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਕਿਹੜੇ? ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने उन लोगों के लिए पढ़ा है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनका ज़मीर मर चुका है। इन जैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो यार, माजूर है, यतीम है बच्चे, इन जैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को यार। DPO साहब, बिलाल ज़फ़र साहब, DPO पूरा को ये मुखातिब कर रहा हूँ, ये वीडियो ये देखें। DPO साहब, आपके इलाके में क्या हो रहा है? आप किस बात के DPO बने हुए हैं जब आपके इलाके में माजूर माओं के साथ फ्रॉड हो रहा है, यतीम बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है ज़मीन के नाम पर। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, फिर ऐसे DPO हमें नहीं चाहिए, घर बैठ जाए ऐसे DPO में। तो माई पुलिस अफसर वेख रहे ने, IG साहब वेख रहे ने, की कहना चाहोगे? मरियम नवाज साहिबा वेख रही है, मरियम साहिबा कहती है खातून ते खवातीन जड़ी मेरी रेड लाइन है। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत माड़ी हूँ सारे लोगों को। ये कहाँ पर धक्के खाएं? वकील के पास आए, उन्होंने अपनी फ़ीस ले ली है 5,000 रुपये, 5,000 और देंगे, चलो फ़ीस तो लेते हैं वो, लेकिन कम से कम यार इन जैसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। खुदा खौफी ख़त्म हो गई है हर बंदे के। वो कहते बस आ गया है, इनको छुरा फेरो यार। ये देखो, ये हमारे हालात हैं मुल्क के, ये देखें ज़रा, ये देखें। केस किया उन्होंने मैंने 2 महीने उत्थे घुमाई रखा, फिर मैं हाई कोर्ट गई 4-5 हज़ार उत्ते लाया, फिर उन्होंने मैनू फरोज वाले कल्ले, फरोज वाले मैनू अगे कल्ले 40। पुलिस को गए हो? हाँ जी, दो बारी मैं फरोज वाले 2 मिनट दरखास्त। शेर साहब ने SHO इस टाइम, हाँ जी, शेर साहब ने मुलाकात हुई है? नहीं वो जड़े अगे जमा करता दरखास्त उन्होंने एप्लीकेशन दी थी खाली। हाँ जी, उन्होंने क्या थानू बुला लैन गए SHO, उन्होंने नहीं बुलाया। अच्छा, उन्होंने कोई गल नहीं की, उन्होंने क्या आपका मसला हो जाएगा, हो जाएगा। कोई 2 दिन तो क्या है, उन्होंने मसला हो जाएगा। कितनी देर हो गई चक्कर काट? कदी कहते DPO को जाओ, कदी कहते अदालत जाओ, कदी कहते ने किधर जाओ। जी एप्लीकेशन दी थी ही, ओदी रसीद किथे वे, चिट किथे वे? और रसीद वकील ने ले लिए, वकील ने सारा कुछ। उन्होंने क्या केस में ताड़ा मुकम्मल करना। अच्छा, हाँ, ये हालात है जी। अब मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहिए, की कहना चाहोगे? साहब ने यही कहनी है, मेरे बच्चे यतीमा बन गए, मैं भी मजदूर हाँ, बेकार हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को घर नहीं है, मैं घर दे खावे मैं क्या जिंदगी खराब कर ली। कहाँ पर लेकर चलते रहे, ये चक्कर लगाती रहेगी मेरी माँ है, अपनी बेटियों को लेकर, बच्चों को लेके। वो बच्चा रो रहा है, वो देखें, पाँव ठीक नहीं है, माजूर है, इस हालत में कैसे चक्कर लगाएगी? कभी DPO साहब के पास जाएगी शेखुपुरे, कभी DSP साहब के पास पेश होगी। खुदा का खौफ कर लें आप लोग। वर्दियाँ आप लोगों ने पहन ली है, लेकिन आपके इलाके में अभी भी फ्रॉड हो रहा है। अभी भी प्लाट के नाम पर एक प्लाट जो है 10-10 लोगों के आगे बेचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए, इस दौर में भी इस तरह के काम हो रहे हैं। तो इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो IG साहब तक पहुँचे, राव अब्दुल करीम साहब CCPO लाहौर तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि इन पर नोटिस लिया जाए, मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुँचे ताकि इस मामले पर नोटिस लिया जाए और इसका मसला हल किया जाए। अल्लाह हाफिज़।